No. No. सुनीता, हम बोल दिया था ना कल ही। हाँ सुनीता, someone is creating a lot of sounds. Can you please just mute yourself? Good morning, everybody. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. All of you, please, can you check किसके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है? आप थोड़ा check कर लीजिए. Yes, please mute yourself. Check your mute buttons next to your mic, next to your video signs. All your videos are off again, but mics are on. So please, if you could
आप सब लोग इनको बंद कर लेंगे हाल से। मधु सैनन, हीना जोगानी, संगीता बुबना, संगीता माथुर। And also, can someone let me know who's going to read the thing so that you can at least put it on the chat that I will be reading. So, Nikhil, do we start with meditation or do we go directly to reading? We can do meditation. So let's do meditation. We can start because it's 5 now, and we should start. Just a second. In the middle, there is. Ritu Riya, please mute yourself. There's a lot of strain on your. Someone. Please see, everyone is here to get something out of it. Please keep yourself on mute. Again, Jaya Mustara, if you could mute yourself, because it kinds of creates a nuisance for everyone in that case. Thank you so much. हेलो, कोई नहीं, मैं इतना मेडिटेशन करा। Breathing deeply in and out, feeling relaxed. Our whole body is relaxed and comfortable. Breathing deeply into your eyebrow space, in and out, turning your attention around, becoming the observer. Breathing into this state of inner being, the observer. Become your inner being, starting in this space of awareness of all that you are and all that you are becoming. Using the power of your vision, of your mind, of your feelings to create, and the power of your belief, your faith in what you really are to bring life to you. We are going to tell the story of our appreciation. I am so grateful right now. I feel so much appreciation for the wonderful life I am living, for the momentum that is building, for all the things that are around me that I can be grateful for. I feel so grateful to have the awareness of who I really am, to see the truth of life and love. I am so grateful that I can feel my good feelings, that I have enough self-awareness that I can tell the difference between a good feeling and a not so good feeling. I am grateful that I can follow my good feelings to a life of fulfillment. I am grateful that I can slow down enough to hear my inner being, to feel what kind of awareness, to feel what that kind of awareness is like. I love this feeling. I love the feeling of becoming. I am grateful for this feeling. It helps me to see my manifestations made real. I am extremely grateful for all the people in my life. I am grateful for my friends, for my family, for my children. I am grateful for my clients, colleagues, and business associates. I am intensely grateful for my partner, my mother, my father. I am grateful for my inner being's closeness and connection to Source, to all that is, to God. I am
am grateful that I'm finally becoming aware of who and what I really am and are able to understand my role. The fact that I only need to focus on what feels good and I will attract all that I need and want to achieve my desires. I am grateful for the flow of ideas and loving thoughts, which are becoming more prevalent in my mind with each day that passes. I am grateful for my good sleep. I am grateful for the days I wake feeling rested and renewed and eager. I understand that if I have days when I don't wake like that, that there is another opportunity the following night. I am grateful to have found my purpose, to understand which direction I am going, and I am grateful for the understanding that if things are happening that are not in perfect alignment, that it is temporary, and the sooner I am able to let go and trust that everything will be okay, the sooner I get back into alignment again. I'm so grateful for this alignment feeling. I'm so grateful for all the signs and signals I get to see along the way, which assist me in knowing. I'm incredibly grateful for my body, for my abilities, skills, and talents, for my awareness of my thinking, for my awareness of my feeling. I am grateful for the abundance that flows continually into my life. I am grateful for the wonderful creations that are becoming and how they are proof to me that I am a magnificent being and I can create my reality. I am so grateful for the moments when I see others who are aware too, and the synergy we feel together as we both expand with moments of shared awareness. I am so grateful for that moment when we say in our hearts, I see you. I am grateful to you for listening. And I thank you for your openness. Breathing deeply in and out. Okay. Good morning, everybody. And I'm so sorry you have to bear with me because my internet connection got a little thing. So let's begin with today's topic about magical relationships. हमने आज तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने आपको मतलब सर ने भी जो बताया है, it is all, this world is all about thoughts, feelings and attracting everything what you want in your life. This whole magical book takes you through a journey which helps you to attract whatever you want in your life. Okay. And the basic of manifestation tells you what we have learned in all these days is you do not attract what you want, but you attract what you are, what your feelings are. Okay. What your thoughts are. So that is how we are working on it. And today, and when we are coming to this great topic, सबसे पहले इस book में ये बताने जा रही हैं, after count your blessings and the magic rock, what she's telling you is about magical relationships. The first chapter begins is about relationships. कि ये relationships जो हैं आपकी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए ये कितना तवज्जो रखते हैं आपकी जिंदगी में. So, ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इसके अलावा आपको मतलब सबसे पहले वो उसने ये स्टार्ट किया किस चीज को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी जिंदगी में एंड कैसे आप अपने जीवन में सुधार लाओगे, वो है टू हैव मैजिकल रिलेशनशिप्स. तो इसको जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे सबसे पहले
ये एक कोट याद आ रहा है जो रूजवेल्ट ने लिखा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल इंग्रेडिएंट in the formula of success is knowing how to get along with people. कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है कि अगर आपको पता है लोगों के साथ आप कैसे निभा सकते हो, कैसे आप अपने रिश्ते बना सकते हो, कैसे उसके ऊपर निर्भर है आप जिंदगी में कहां तक कितने तरक्की करोगे. So this is what we are going to read today. Yes, who had volunteered? Someone said I want to read. Yes, बबीता, है ना? Yes, yes, yes. हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश बुक से ही, बिकॉज वो थोड़ा इजी है सबके लिए समझना, और मुझे भी बताने में सहूलियत होती है जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, लेकिन ये जरा मेरे लिए आसान हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा कंसेप्चुअलाइज जल्दी कर पाती हूँ कि किताब क्या कह रही है. ठीक है, सो प्लीज, एंड इट विल बी अ कांस्टेंट थिंग, कंसिस्टेंट थिंग. हम रोज एक ही किताब से पढ़ेंगे तो हमें पता भी रहता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना. बाकी जब तक जहां तक कोशिश होगी, हम सब की हम कोशिश करते हैं, हम सबको ही, हम हिंदी बोलने की, और हम हिंदी में ही समझाने की कोशिश करेंगे. अगर कभी मैं इंग्लिश में स्विच आउट भी कर जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा. एंड प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि हम इस जर्नी में जा रहे हैं, मैंने कई आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर. अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हो कि आपका माइक ओपन है और आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट साउंड से और अपने घर के वातावरण से, तो मतलब आप कॉन्शियस नहीं हो कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में. So the very step starts by being conscious. अपना ध्यान रखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, what am I thinking, how am I feeling, है ना. तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना जब भी हम इस जर्नी में आते हैं, सुबह सुबह हम बिल्कुल कॉन्शियस रहें कि हम क्या कर रहे हैं. So this will put you into practice that you are always in the things, or you are always thinking about, and thoughts and feelings आपकी एक ही चीज पे निर्भर है कि आप क्या इस जिंदगी में लाना चाह रहे हो, है ना. सो व्हाट यू आर, तो आप कैसे हो, आप कॉन्शियस हो तो यू विल बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, है ना. यस, पढ़ें बबीता आप. Day 3, Magical Relationships. हाँ, इसमें मैं दिखा रही हूँ, ये देखो कि तस्वीर कितनी अच्छी दिखाई है उन्होंने. इसमें सारी चीजों की तस्वीर है, इसमें फ्रूट्स हैं, कहीं फोटो रखी हुई है, फोटो फ्रेम है. तो यू नो, मैंने एक बार पहले भी शायद कहा था कि आप जब रिलेशनशिप की बात करते हो तो आपका रिलेशनशिप सब चीजों से भी होता है, सिर्फ लोगों से नहीं होता है. आपकी जिंदगी में कौन आपके घर में है, आपके आसपास के लोग, या आपके साथ जो काम कर रहे हैं, या ये कुर्सी पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये जो मेरा फोन है जिससे थ्रू से मैं बात करती हूँ किसी के साथ, है ना, या मैं गाड़ी चलाती हूँ, कार है या बाइक है, उसके साथ भी आपका हर एक चीज के साथ, आप कोई फल खाने जा रहे हो तो भी आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप होता है. ये किताब मैंने पकड़ी हुई है अपने हाथ में, तो देयर इज अ रिलेशनशिप, यू नो, वी हैव. So we are all, you know, having a particular relationship not only with people, with things also in our life. तो हम कैसा अनुभव करते हैं, कैसे फील करते हैं, ये हमारे वातावरण से ही, आसपास की चीजों से, और आसपास में, you know, it has a lot of impact on you and you also have an impact on that. तो दोनों तरफ से रिश्ता, दोनों तरफा होता है ना, रिश्ता दोनों तरफ से होता है. सो इसीलिए ये इसने कहा मैजिकल रिलेशनशिप्स. हाँ जी, आगे पढ़ें बबीता. यस, प्लीज चेंज द पेज निखिल. हाँ जी. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Yes, please stop here, बबीता. तो ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि अगर आप जिंदगी में अकेले होते, सपोज सोच लो इस दुनिया में कोई नहीं था,
जैसे हमने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, रॉबिन्सन क्रूसो, वो एक शिपरेक हो गई थी तो वो एक आइलैंड में पहुंचा और वहां पर कोई नहीं था। तो जस्ट इमेजिन, आप ऐसे इमेजिन करो कि आप दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या आपको कुछ करने का मन करेगा? व्हाट विल यू डू? कोई जगह नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिससे आप बात कर सको, या कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा व्यतीत होगा? 2 सेकंड के लिए भी अगर आप ये सोच के देखोगे तो आप तड़प जाओगे, ठीक है? बिकॉज आपके पास जितनी भी दौलत हो, जितनी भी शोहरत हो, जितनी भी आपकी पोजेशंस हो, जो भी आपके पास है, लेकिन आपके आसपास इर्द गिर्द किसी के साथ बात करने के लिए या दिखाने के लिए, आई मीन वो एक मुझे गाना याद आता है सजने सवरने में तभी मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, ठीक है? दिस वाज एन ओल्ड मूवी सॉन्ग। तो मतलब जब तक आपको कोई देखने वाला, अब अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हो, आप किसी को दिखाने, खुशी क्यों होती है? जब आप गाना गा रहे हो तो कोई सुनता है, कहता है वाह वाह कितना अच्छा गाया, है ना? तब आपको खुशी होती है। तो जब तक आप किसी के साथ बांट नहीं सकते हो, तब तक आपको जिंदगी की, देयर इज अनदर थॉट आल्सो कि जिंदगी में क्या, व्हेन यू आर इन द जर्नी, इन अ जर्नी किस चीज की आपका, व्हाट इज योर सक्सेस, वेदर यू रीच द डेस्टिनेशन, is that the success? And the thought goes, I've forgotten the exact thought, it says कि नहीं, the success, or what is it कि it is you are, my voice breaking? नहीं, our voice is not breaking. I'll see. हमने अभी अभी आपको बोला है, आप अवेयर ही नहीं है। डॉक्टर अंकिता मक्कड़, आंसर आओगी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। अगर आप इतने भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते मॉर्निंग में आके दूसरे लोगों के लिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज अदरवाइज प्लीज लीव द सेशन यार। सुबह सुबह हमारे को क्यों बोलना पड़ता है? वासु रजावत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वासु रजावत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज लीव द सेशन प्लीज। देखिए, so this is thank you very much everyone, and see this is how you know you are impacting other people's lives also. तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी को तो इम्पैक्ट कर रहे हो, आप लोगों की भी जिंदगी में आप इम्पैक्ट करते हो। so that is why, and whatever you give to others, तो वो जो है वो आपको ये नहीं आता है, you will attract the same things in your life, whatever you are giving, जो आप दे रहे होते हो ना वही आपको मिलता है। ये आगे आगे चल के आपको पता चलेगा हाउ न्यूटन्स लॉ सेज दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट, जब डू यू बिलीव इन मैजिक की जब मैं बात कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक पेंडुलम है, जो आप ऐसे छोड़ते हो तो वो जितनी उतनी एम्पलीट्यूड में आगे जाता है उतना ही पीछे आता है, ठीक है? दैट इज, दीज आर लॉज, ये बेसिक लॉज हैं जिंदगी के। तो इस पर अगर आप गौर करोगे, आप कौन है ये, प्लीज अपनी आवाज बंद करेंगे, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, प्लीज प्लीज बी, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कैन डू दैट। एवरी टाइम सब नए नए लोग क्यों अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं? आपके वीडियोस तो सबके म्यूट रहते हैं, क्या कहते हैं, और सबके ऑडियोज आप खोलते रहते हैं अपने। अभी भी स्नेह अग्रवाल, व्हाई हैव यू अनम्यूटेड योरसेल्फ? वासु राजावत, कौन है वासु राजावत? बबीता इज रीडिंग, सो बबीता का अगर माइक ओपन है तो मुझे समझ में आ रहा है। वासु एंड स्नेह, वेयर आर यू? वासु एंड वासु राजावत, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एंड माइक कोई नहीं खोलेगा अपना। आपको कुछ बोलना नहीं है तो आप नहीं स्विच ऑन करोगे, ओके? आप दूसरों की जिंदगी, ये देखो पहला चैप्टर में ही आप देखो कितना आप कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो लोगों को। शांति से आप सुकून दे सकते हो सुबह सुबह, वही नहीं दे रहे हो, ओके? सो इसीलिए अपने अपने जब आप लॉग इन करते हो तब अपने आप को सारे, आपका एक ऑप्शन है जूम में, वो पूछता है तो उसको परमानेंटली अपना वीडियो एंड सारा म्यूट करके रखो, ऑडियो, ओके? देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन डू दैट, आई ऑलवेज डू दैट। हाँ जी, तो हम ये आज इतना बढ़िया चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप्स का। देखो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ना सबको, हाउ पीपल आर इम्पैक्टिंग यू एंड हाउ यू द अदर्स हु आर म्यूट, कितनी अच्छे से वो इस जर्नी में आ रहे हैं। तो जब आप कॉन्शियस होते हो, दैट इज हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इंटेग्रल अबाउट योर लाइफ, ओके? एंड इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू फील रिस्पॉन्सिबल। अपनी लाइफ के बारे में आप जिम्मेदार हो, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। एंड
सबसे पहले क्या करते हो आप, रिलेशनशिप से अट्रैक्ट करते हो। एंड रिलेशनशिप्स मैंने बताया हर चीज के साथ है, आपके अपने माइक के साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, अपने वीडियो के साथ आपका रिलेशनशिप है ना। तो आप सब चीजों के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, इसीलिए आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं वो। हाँ जी, आगे पढ़े पविता, दिखाई दे रहा है आपको पविता? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। आपकी बुक है आपके पास? Yes, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। इट्स योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। it's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes, please stop here. अब दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज टेलिंग यू कि अगर हम जब वाइब्रेशंस की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, ये जो अभी हमारे को डिस्टरबेंस हो रहा है, ये एनर्जी को खींच रहा है ना, आपकी लो कर रहा है। तो आपको हाई एनर्जीज में रहने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास हाई एनर्जी वाले लोग हों, पॉजिटिव थिंकिंग लोग हों। तो इसीलिए वो कह रहा है कि रिलेशनशिप का चैप्टर इसीलिए उसने सबसे पहले लिया है कि आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके एक्सपीरियंसेस, आपका तजुर्बा जिंदगी के जर्नी में गुजरते हुए आपके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बखूबी उस पर निर्भर करते हैं कि आपके आसपास कौन लोग हैं। तो दैट इज वाई, सो दिस रियली टीचेस यू, टुडेज डेट रियली टीचेस यू कि आपको पॉजिटिव जोन में, आपको उस वाइब्रेशन में, उस हायर स्टेट में रहने के लिए कितना जरूरी होता है कि आप किसके आसपास रहते हो, वो बहुत मायने रखता है। A man is always judged by the company he keeps. There is a very good saying. तो किन लोगों के बीच में आप रहते हो, हाई एनर्जी हैं या लो एनर्जी में हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, आपको समझ में आता है ना लो एनर्जी और हाई एनर्जी किसको बोलते हैं, ये समझ में आता है? जस्ट टाइप ऑन द चैट बॉक्सेस व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चंस। आपको माइक खोलने की जरूरत नहीं है टिल वी आर रीडिंग, जस्ट टाइप ऑन द चैट बॉक्स, डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी? हाई एनर्जी का मतलब है जो वो भावनाएं जिनका, हर एक भावना का ना अपना वाइब्रेशन होता है, हर एक भावना, एंड ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइकोलॉजिकल जो ब्रेन की स्टडी करते हैं, माइंड स्टडी करते हैं, उन्होंने ये टेस्ट किया हुआ है कि जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग से हाई होती है। जितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनकी लोअर वाइब्रेशंस होती हैं, और आपके पॉजिटिव फीलिंग्स में वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, और हमने आपको बताया है कि आप हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करोगे, एनर्जीज आपकी हाई रहेंगी, तो आप उन अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप उस जोन में हो। मैंने आपको बोला कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जैसे होते हो वही एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो। ये तरीका है अट्रैक्ट करने का। जब आपके यहाँ पर इंटरनेट है या रेडियो जब आप लगाते हो, तो आप 107 चैनल सुनना चाहते हो तो 107 फ्रीक्वेंसी लगाते हो, 93.5 फ्रीक्वेंसी लगाते हो तो वही चैनल आता है आपके पास। ये सिंपल सी चीज है जिंदगी की। आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो आप वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू कि आपके आसपास जो लोग होते हैं तो आपके लिए कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं। आगे पढ़ें बबीता। हेलो, आई थिंक She muted herself. Babita, if you could unmute yourself. Yes, sorry. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationships to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce.
यस प्लीज स्टॉप हियर। ये स्क्रीन पे कुछ अलग आ रहा है ना निखिल? शी साइंस इज नाउ कंफर्मिंग आ गया, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। सो दिस इज द पैराग्राफ व्हिच सेज कि अब साइंस ने भी ये कंफर्म कर दिया है ना, कि और वो बहुत सारे पुराने संतों ने हमारे जो ग्रंथ हैं जो ये हैं, बिकॉज वी हैव बीन ऑलवेज एडवांस्ड, यू नो, आवर रिलीजन एंड आवर थिंग्स हैव बीन, यू नो, टोटली एडवांस्ड, बट दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट एनर्जी वाइब्रेशंस। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया है ना, कि आप जैसे जैसे वाइब्रेशंस में रहते हो उन्हीं लोगों और ऐसे जिनके साथ क्लोजर रिलेशनशिप्स होती हैं, और कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वो जो हैं उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हाई होती हैं, दे आर ऑलवेज इन द हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमारे जो एक्सट्रीम सोर्स ऑफ वाइब्रेशन जो है ग्रेटिट्यूड है, जहां पर हम कोशिश करते हैं, एक्चुअली लव है, उससे भी ऊपर लव है, लेकिन लव को तक पहुंचने के लिए the simplest way, because understanding love is very complex for us, तो हमारा रास्ता जो है कि हम ग्रेटिट्यूड से शुरू करें। जब आप ग्रेटिट्यूड्स देते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ग्रेटिट्यूड की दुनिया में रहने से उसमें क्या कि आप हाई वाइब्रेशंस में चले जाए थ्रू ग्रेटिट्यूड, बाय गिविंग ग्रेटिट्यूड टू, लोगों का शुक्राना करने से, लोगों के बारे में या अपनी चीजों का शुक्राना करने से, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है उसका शुक्राना करने से क्या है कि आप हायर वाइब्रेशन में आते जाते हो बिल्कुल स्लोली स्लोली यू गेट इनटू द हायर वाइब्रेशन एंड यू कीप ऑन क्लाइंबिंग हायर एंड हायर। एंड द मोमेंट यू क्रिटिसाइज, है ना, जब आप उस चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं उस बंदे को या उस व्यक्ति को जो भी आपकी जिंदगी में है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक क्रिटिसिज्म के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखनी होती हैं, ये इक्वल बताया है। रोंडा ने ये बोला है कि एक क्रिटिकल होने के लिए, एक कंप्लेंट अगर आपने किसी बंदे के बारे में की तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स उस बंदे के लिए लिखनी पड़ती हैं। दिस इज हाउ शी इक्वेट्स कि आप कितनी, मतलब एक कंप्लेंट करने से आप कितनी नीचे आ जाते हो, आपकी फीलिंग्स कितनी नीचे चली जाती हैं, फटाक से चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत ध्यान रखना। और उसने ये भी तक कहा है कि अगर आपने इस तरह से कंप्लेंट करते रहे और आपने वो उसको ग्रेटिट्यूड से ऊपर नहीं उठे, तो अगर एक मैरिटल रिलेशनशिप को ले तो वो वाकई ही डाइवोर्स में परिवर्तित हो जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा आपको, तो ये जो आपको एक मंत्र बता दिया उन्होंने कि आप रिलेशनशिप्स के लिए आप कैसे अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हो, और वो है शुक्राना कर करके। ठीक है, हाँ जी। Yes, Babita, can you read gratitude makes relationships? वहां से पढ़ेंगे। Gratitude makes relationship flourish. Next page, Nikhil, as you आगे। As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't be able to see the things you need to complain about. You used to complain about, है ना? तो You ये used to complain. ये ग्रेटिट्यूड की साइंस के बारे में बोलते हैं। और अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं जो हमारे को बिहेवियरल एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द सोशल सेक्टर, सो आई अंडरस्टैंड टोटली हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ड. सो द मेन थिंग्स व्हिच वी टेल अबाउट रिलेशनशिप साइंस इज दैट यू शुड एक्सेप्ट द पर्सन एज ही और शी इज. एक्सेप्ट करना जरूरी है. हर व्यक्ति अलग है. भगवान ने कोई दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया है, तो हर एक व्यक्ति डिफरेंट है और अपने आप में यूनिक है. ठीक है, सो यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड देन यू मस्ट लर्न टू लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग. हम जब कैसे भी बातें करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसे ये करेंगे, वही सोचते रहते हैं. इसने मुझे ये कहा तो मैं इसका रेस्पॉन्स ऐसे करूंगी, उसने मुझे ईंट मारा तो मैं पत्थर मारूंगा. आई मीन यू नो दिस इज हाउ वी कीप ऑन गोइंग. उसने मेरे बारे में ऐसे कहा कैसे, वी बिकम सो ईगोइस्टिक.
एंड थर्डली, आज की जिंदगी में हम क्या है ना, हम अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, हम हमारे पास टाइम होता ही नहीं है, हम सोचते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर टाइम, वी डोंट स्पेंड टाइम विद द पीपल वी लव इन आवर लाइफ, वेदर इट्स आवर चिल्ड्रन, वेदर इट्स आवर हस्बैंड और इट्स आवर स्पाउस और इट इज आवर नियर एंड फादर मदर, जो भी हैं, जो हमारी सोर्स रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं, ये फादर मदर जो होते हैं वो सोर्स रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, एंड हम भरोसा भी, आप भी, जिंदगी इतनी हो गई ना, ये जो फेसबुक एंड ये सब की दुनिया में घुस घुस के, टेक्नोलॉजी की से अट्रैक्ट हो के या एडिक्ट हो के उसमें हमेशा व्हाट्सएप पे रहना, हमेशा व्हाट हैव वी बिकम, टेक्नोलॉजी बाउंड हो गए हैं हम। टेक्नोलॉजी बाउंड होने से भी हमारा क्या हो रहा है कि वी आर नॉट ट्रस्टिंग पीपल। तो अगर मैं साइकोलॉजिकली बोलूं, ये सारी क्वालिटीज रिलेशनशिप में चाहिए होती है, एंड रोंडा ने एक तरीका बता दिया है जिसको, जो सारी चीजों को ले आता है। अगर आप बंदे के बारे में कंप्लेन करना, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करोगे, आपका सपोज इट इज योर हस्बैंड हु यू आर ऑलवेज बिकरिंग अबाउट, और यहाँ बच्चों के साथ आपका पटता नहीं है, टीन एज में बच्चा आ गया है एंड वो आपको बहुत बहकान, देन यू नीड टू राइट gratitude for that relationship you want to cure in your life, you want to heal in your life, क्योंकि वो जब तक हील नहीं होगा वो रिलेशनशिप, तब तक आपकी जिंदगी में आप चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड डालते हो, आप ग्रैटिट्यूड की साइंस हमने आपको बताई, क्या होता है कि अगर आपके अपने माइंड में प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो आप अच्छी क्वालिटी के लिए लिखोगे ना, तो यू विल बी प्रेशराइज्ड, योर ब्रेन विल बी प्रेशराइज्ड टू थिंक द गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। और जब आप गुड क्वालिटीज को चुन चुन के लिखना चालू करोगे, लिखने से क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक वायरिंग चलती है। सर ने जो बताया था राजन सर ने कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, द पावर ऑफ योर लाइफ और योर सक्सेस लाइज इन योर माइंड। तो माइंड को अपनी तरफ फेरने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के लिए जो एक्सरसाइज बताई है इन्होंने ग्रैटिट्यूड की, ये एक सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है। तो जब आप लोगों के बारे में अच्छी चीजें ढूंढोगे और रोज रोज उसके बारे में अच्छी चीजें ढूंढोगे जिसकी वजह से आपको अच्छा हुआ, तो देन यू विल मिस आउट ऑन द थिंग्स, वो एक्लिप्स हो जाएंगी। उसकी अच्छाइयां को जब गिनना शुरू करोगे तो उसके नेगेटिव चीजें उस अच्छाइयों से एक्लिप्स्ड हो जाएंगी, एंड यू विल ट्राई टू सी, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन एंड यू विल स्टार्ट mending your ways and you will start spending time, you will start listening from their point of view, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा ना। आज तक तो आप कंप्लेन कर रहे थे, जब आप ग्रैटिट्यूड से उसकी अच्छाइयां ढूंढने लगोगे तो आपकी पिक्चर ही चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। तो वो होता है कि आपके ग्रैटिट्यूड से कैसे आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है अबाउट द पर्सन इन योर लाइफ whom you are wanting to heal in your thing. So that is how this gratitude is the easiest science which tells you how you can heal your relationships and you can develop good relationships in life, and how you can remain in high energy by impacting your relationships, by healing your relationships around you. Yes, please go ahead. Yes, next page, or I should read from my book. Yeah, he is changing the page. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. Please stop here, Bibita. This is a wonderful quote. We can only be said to be alive in those moments. हम उन पलों में ही जीवित होते हैं जब हमारा दिल जो है, हमारे आसपास हमारे को क्या वेल्थ मिली हुई है, हम अपने पैसों को और अपने पोजेशंस को ही वेल्थ मानते हैं, लेकिन आसपास में इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, बच्चे हैं, और आपके आसपास नेबरहुड अच्छा है या आपके रिश्तेदार अच्छे हैं, जब आप उनको ढूंढने लगते हो ना, दैट इज द मैक्सिमम। जब आपके मन ट्रेजर्स होते हैं, जब आपको असीम खुशी मिलती है, दैट इज द टाइम यू विल फाइंड दैट थिंग्स, है ना। यहाँ पर ये ये वाली सेंटेंस जो ये थॉट बोला ना, इसमें अगर मैं आपको लेके चलूं मूवी लैंड में, तो मूवी लैंड में एक मूवी थी, आई थिंक दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर की मूवी थी, शायद जवानी दीवानी या ये जवानी, आई डोंट नो, फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, जिसमें दे बोथ गो साइट सीइंग एंड दीपिका सेज कि मतलब वो कहता कि चलो हम ये सनसेट का मतलब छोड़ के, हमारी वो टिकट है, हम वो शो को देखने जाएंगे। तो शी सेज कि नहीं, यहीं बैठते हैं,
क्योंकि तो ही कि नहीं, अगर वो हमें पता चला कि वो नाटक बहुत अच्छा था तो बोली वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम उसको देखने जाएंगे तो हम इस मोमेंट को मिस कर देंगे, जो इतना खूबसूरत सनसेट है हम इसको देख नहीं पाएंगे। सो एंजॉय द मोमेंट, उस मोमेंट को हमेशा एंजॉयबल बनाओ। जिस मोमेंट में आप हो, जहां पर भी आसपास जो भी लोग हैं, जो भी नजारा है आपके पास, उसमें जीवित रहना ही ट्रू ये है कि आपको कैसे आप एंजॉय कर रहे हो अपनी जिंदगी को, कैसे आप हाई वाइब्रेशंस में रह रहे हो, एंड जितने आप हैप्पी मूड में रहते हो, जितने आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो और जैसे उस मोमेंट्स को एंजॉय करते हो, दैट इज हाउ यू विल अट्रैक्ट दोज एनर्जीज इन योर लाइफ एंड यू विल build a wonderful relationship with the people around you। आप लोगों के साथ वो महत्वपूर्ण रिश्ते स्थापित करोगे जब आप उस पॉजिटिव जोन में रहते हो, और उस मोमेंट को हमेशा उस रहो कि उस मोमेंट को एंजॉय करना है। आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन उस मोमेंट को एंजॉय करना है। दैट इज द थिंग हाउ यू विल impact your relationships। हाँ जी, आगे पढ़ें बबीता। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring it to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? So this is the thing, you know, which you have to come into the zone। जब आप चाहते हो कि आप जैसे भी हो लोग आपकी तारीफ करें, तो दूसरे भी तो वही चाहते हैं, दूसरे भी तो वही चाहते हैं। और रिश्ते इतने कोमल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं, जिसको कि हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईगो की दुनिया में रहते हैं, हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया में नहीं रहते हैं। And here, you know, I am reminded about a story from बुद्धा। बुद्धा की एक स्टोरी थी जिसमें ना बुद्धा ने क्या किया था कि, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने ना एक रुमाल लिया है। तो एक बार बुद्धा जब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और वो अपना शिष्यों के साथ क्या करते थे, वो अपनी टीचिंग्स या वगैरह शेयर करते थे। एक बार जब वो बुद्धा गए अपने शिष्यों के पास, तो उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा रुमाल पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने उस रुमाल, तो लोगों ने सोचा कि पता नहीं ये कभी बुद्धा तो हाथ ऐसे में कुछ लेके नहीं आते थे, आज रुमाल लेके क्यों आए हैं। तो बुद्धा ने अपनी चीजें, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, अपनी टीचिंग्स शेयर कर रहे थे। उसको शेयर करते करते ना वो इस रुमाल पे इस तरह से गांठे लगाते जा रहे थे, वो इस तरह से गांठे लगा रहे थे, है ना। तो उसके बाद में जब उन्होंने बात करते करते, उनसे बातें करते करते 3-4 गांठें लगा ली, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने मेरे हाथ में क्या था, तो सबने कहा रुमाल था। तो उसने कहा कि अच्छा, ये रुमाल अब उसी स्थिति में है अभी भी जैसे मैं लाया था। तो एक तो सबको हो गया कि बुद्धा क्या पूछ रहे हैं, सारे मैंने आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब एक शिष्य ने कहा कि सर, ये आपके रुमाल में गांठें लग गई हैं, तो ये कपड़ा तो वही है जो आप लाए थे, लेकिन इसका जो रूप है वो बदल गया है, इसमें गांठें लगी हुई हैं। तो बुद्धा ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये तो वही है। अब अगर हम इसको दोबारा उस तरह से, उस कपड़े को फिर से वापस उसी तरह से बना सकते हैं क्या ये वापस अपनी परिस्थिति पे जा सकता है? फिर लोग सारे चुप हो गए कि अब ये वापस उस स्थिति में जा सकता है, फिर से वही कपड़ा बन सकता है क्या? तो फिर उस शिष्य ने, जो थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था, उसने कहा हाँ, अगर हम इसकी गांठ कैसे लगी है उसको स्टडी करें और उसको उसी तरीके से खोल दें, तो ये वापस उसी रुमाल में आ जाएगा। अगर हम गांठ खोल देंगे तो हमें पता है ना कि इस तरह से गांठ लगी है, इसको इस तरह से खींचेंगे तो खुल जाएगा। बुद्धा ने कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर हम गांठ को समझ ले किस तरह से लगी और उसको उस तरह से खोलने की कोशिश करें, तो ही सारी गांठें खोल सकेंगे हम और वापस रुमाल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस गांठ को इस तरह से खींचते रहेंगे, जैसे मैं खींच रही हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? इस तरह से अगर हम गांठ को, दोनों साइड के गांठ के कपड़ों को खींचते रहेंगे, तो गांठ जो है वो पेचीदा हो जाएगी, तब वो खुलेगी नहीं और वापस वो जो कपड़ा है वैसा नहीं बन पाएगा।
इसी तरह से वो बुद्धा का कहना, इस कहानी के दौरान वो ये कहना चाहते थे कि लोग जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो गांठें पड़ती हैं उसको खींचने नहीं चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए लोगों को, ताकि वो गांठ बढ़ती जाए, पेचीदा हो जाए। हमें क्या है, हमें ग्रैटिट्यूड देना, उनकी अच्छाइयां अगर हम ढूंढते हैं तो हम सारी गांठें जो हमारी इस रिलेशनशिप में पड़ी हैं उसको खोलते हैं, उसको हम खोल रहे होते हैं और हम उसकी क्रीजिंग कर लेते हैं और वापस हमारी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बखूब ही अच्छी बन जाती हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ वंडरफुल स्टोरी व्हिच एक्सप्लेन्स यू कि आप अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप्स को कैसे सुधार सकते हो। सिंगल वे हियर इट इज गांठें खोलने का, आप उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल होना सीखो। वो जैसा भी है वैसा भी है, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करोगे और उसकी अच्छाइयों को ढूंढोगे, तभी आप ग्रेटफुल फील कर सकोगे। हमने ग्रेटफुल की भी परिभाषा बताई थी, आपकी फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ आप खाली अच्छाइयां नोट नहीं करोगे, फील भी करोगे उसके बारे में उसी तरह से। हाँ जी बबीता, पढ़ेंगे आगे। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And when with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Yes, read the next para also. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your granddaughter, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the or the both Next. of you to, or both of you together. or both of you together. आगे भी पढ़ लें। हाँ। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. हाँ, तो इस पैराग्राफ में वो जो है ना, ये बता रही हैं आपको रोंडा कि कैसे आप गुड क्वालिटीज, यू नो दिस बुक इज इतनी अच्छी है ये किताब कि अगर आपका दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है ना, ये आपको पॉइंटर्स दे रही है कि कैसे आप बंदे की, वो बंदे की में पेशेंस है, या आपकी सुनता है आपकी बातें, है ना, या सुनती है, या उसके टैलेंट्स इतने अच्छे हैं कि आपको लग रहा है कि यार मतलब वंडरफुल टैलेंट्स हैं जिसकी वजह से आप प्रभावित हो, या उसकी कोई स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, मतलब, या उसका जजमेंट, विजडम, मतलब इतनी सारी चीजें ये आपको क्यों देती है कि आप ये सारी चीजें एक अगले बंदे में ढूंढ के उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो इस किताब को ना, इस चैप्टर को सुबह पढ़ने के बाद घर पे भी जाके पढ़ा कीजिए पहले, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिंक, बिकॉज ये आसान बना देती है। ये इतनी बढ़िया बुक इसीलिए लगती है मुझे क्योंकि ये अगर आपका दिमाग काम नहीं भी कर रहा है ना, तो आपको लीड कर देगा वहां, ये किताब लीड कर देती है कि कैसे आपको ढूंढना है। आगे पढ़ें बबीता। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you're grateful for. Thank you, dash their name, for dash what. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college.
हाँ, तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि इसने जो एक्सरसाइज बताई है आपको आज के लिए कि आपकी रिलेशनशिप्स में आप कैसे फर्क लाओगे। 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स आपको चुननी है और आपको कल ही प्री रीडिंग करा दी थी निखिल जी ने कि आपको उन तीनों व्यक्ति की फोटोग्राफ्स अपने सामने रखनी है और फोटोग्राफ्स रखने के बाद आप क्या करोगे, एक पेन एंड नोटबुक लोगे या फिर अगर आप कंप्यूटर पे लिखते हो तो कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप पेन एंड नोटबुक को यूज करो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देयर इज अ साइंस, जो लिखने से आपके जो वायरिंग होती है ना ब्रेन की वो बहुत जल्दी चेंज होती है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड द मेंटल एनर्जी। आप फिजिकली क्या करते हो, आप जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ब्रश करना सिखाया जाता है बचपन से, तो अब आप थोड़ी सोचते हो कि क्या मैं ब्रश करूंगा, कैसे करूंगा, ये थोड़ी सोचते हो, यू नो इट। when you learn driving you have to be very conscious. after you have learned driving आप अपने आप से ड्राइव करते हो, आप थोड़ी सोचते हो क्या। जब आप खाना बनाते हो, लेडीज खाने के बारे में सोच लें, कितना नमक डालना डेली मेजर करके थोड़ी डाल रहे होते हो, अब आपको आदत हो जाती है ना सारी चीजों की। तो दैट इज हाउ लाइफ ऑल्सो मूव्स। तो आप जब उसके बारे में लिखते हो, उस बंदे के बारे में, ग्रेटिट्यूड से अच्छी क्वालिटीज के बारे में, योर वायरिंग चेंजेस एंड योर परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन चेंजेस, बहुत जल्दी चेंज होता है, ये आप करके देखिएगा। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग यू कि आप 3 रिलेशनशिप्स को चुनोगे और उनकी फोटोग्राफ्स को सामने रखोगे, क्योंकि फोटोग्राफ सामने रहने से आपका यू नो व्हाट यू सी इज सामने एकदम, तो उसको देख के आप उसकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में ग्रेटफुल होगे और जो भी उसका हो, अगर उसकी नेगेटिव क्वालिटी भी यार उसका क्या पॉजिटिव असर आपकी जिंदगी में आ रहा है वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि वो जो है उसकी वजह से आई एम थैंकफुल कि मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन आया, तो उस तरह से आपको ग्रेटफुल होना है एंड यू कैन कीप ऑन थिंकिंग। थैंक यू जॉन, तो उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं। थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, है ना। अब कोई हो सकता है कह सकता है कि यार ये वो जोकर टाइप का बंदा है, बट उससे हंसी तो दिला रहा है ना आपको, सो यू कैन थिंक ऑफ इन द पॉजिटिव टर्म्स। तो दैट्स हाउ यू शुड से। तो इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड हर व्यक्ति के लिए, और 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप सबसे पहले चुननी है जिनमें कि आप सुधार करना चाह रहे हैं, आपके नियरेस्ट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। वो किसी के साथ भी हो सकती है, माँ बाप के साथ हो, बच्चे के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, या आपके कोई और कोई रिलेटिव्स हैं घर में, तो वट एवर इज योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप उस पर आप करोगे तो फीलिंग्स जल्दी आती हैं। वो क्यों क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बोल रही है, उस पर आपकी फीलिंग्स जल्दी आएंगी एंड आपको जब अच्छा नजर आएगा फर्क होता हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एंड यू विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। हाँ जी, आगे पढ़ें। When you're finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic words, "Thank you," and the person's name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationships as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Thank you. So this is what she is concluding on, that if you would be loved, love and be lovable. आपको जो चाहिए होता है, be the change you want to see in the world. ये गांधी जी ने भी कहा था, है ना। ये जो मैंने पहला वाला आपका पढ़ा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, if you would be loved, love and be lovable. तो what you are, जो ये बुक भी कहती है कि you do not attract what you want, you attract what you are. तो आप जब अच्छे हो जाते हो और आप अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने लगते हो लोगों में एंड यू आर ग्रेटफुल टू देम, दैट इज हाउ यू विल अट्रैक्ट ब्यूटीफुल पीपल इनटू योर लाइफ ऑल्सो। ये खाली आपकी उस रिलेशनशिप को भी हील नहीं करता है, या आगे का रास्ता भी साफ करता है कि वैसे ही पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, और जैसे जैसे ये वातावरण आगे बढ़ता जाएगा आपकी हायर एनर्जीज में आप
चलते जाओगे. Yes, please go ahead. Read the practice number 3. Magic practice number 3. Magical relationships. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3, with the photo in front of you, write 5 things you're most grateful for about each person in your journal and on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words, thank you, include their name and what you're especially grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today and put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words, thank you, and their name. Thank you, Haley. Number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Babita ji, for your amazing reading. Gurpreet ji, you Thank there? you. Yes, yes. Thank you, Nikhil, for giving me this opportunity. Thank you, Gurpreet ma'am. So very well explained today, this session. Amazingly, she has explained the entire, the relationship के बारे में. She has explained it amazing. Gurpreet ji, you are there? I think she has some network or some issue. So we have Rajan sir here to conclude the session. Sir, would you like? Yeah. So thank you very much. Thank you, Gurpreet, and thank you, Babita ji. And जो आज हमने समझ में आया, that movie, और Gurpreet जी का एक speciality है that she always makes us understand by giving a reference to a movie. ये कौन सा movie था? That ये तो जिंदगी, what is that? ये जवानी है दीवानी. ये जवानी है दीवानी. When Deepika tells to Ranbir Kapoor that live in the moment. होता क्या है, वो लोग एक सनसेट देख रहे होते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, और वहां पर रणबीर कपूर बोलता है कि मेरा वो मिस हो गया, मेरा ये मिस हो गया, मेरा ये मिस हो गया. सो दे आर, आई थिंक, इन जोधपुर और दे आर इन सम प्लेस इन राजस्थान एंड ही वांट्स टू ट्रैवल लॉट ऑफ प्लेसेस क्योंकि उसको काफी साइट सीइंग देखनी रहती है. एंड एट दैट मोमेंट दीपिका सेज एंजॉय द सनसेट. You cannot go and travel to all the places at the same time. Similarly, हमारी जिंदगी में भी there are so many experiences we are missing. अरे आज मैं इसको मिस कर रहा हूँ, मैं आज इसको मिस कर रहा हूँ, and we stop living in the moment. So very well explained. And it was this today's chapter was about relationship. And fortunately, आज जो हमारा day 6 का जो मैंने जो आज भेजा है, वो card, the affirmation card is also about I am connected. Okay, so anybody would like to volunteer to read this card if they have got this card, or I have sent it in the group also. See, these are affirmation cards. The affirmation cards help you to think positive. We keep on saying, आज भी इस book, आज भी chapter में वो sentence आया था, our words are powerful. हम जो बोलते हैं उसमें काफी ताकत होती है, काफी शक्ति होती है. ये हम लोगों ने याद रखना है. Whether it is about your relationship, it is about attracting wealth, it is about being healthy. आपको अगर कुछ भी करना है, आपको आपकी जुबान को संभालना है. रिमेंबर कि आपके जुबान से जो भी निकलता है वो ब्रह्मांड में चला जाता है और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु. इट इज वेरी सिंपल. हम जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसमें एक ऊर्जा होती है, और जैसे कुछ भी हम बोल देते हैं, भले मजाक में बोल देते हैं, हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं,
So what is happening is that energy is going into the universe, और यूनिवर्स कहता है योर विश इज माई कमांड, आपकी जो इच्छा है वो मेरा हुक्म है। क्या हुक्म? मेरे आका। उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है अलीबाग, अपना अलाउद्दीन एंड द मैजिकल लैम्प, सॉरी इट इज अलादीन। अलाउद्दीन, यस, अलाउद्दीन एंड द मैजिकल लैम्प। सो हमारे पास भी वही मैजिक जादू है। We all have this magical lamp, and whatever we say, we are giving a command. और ब्रह्मांड का काम है तथास्तु, जो आप बोलोगे वो उसको करता है। तो क्यों ना हम कॉन्शियसली कीप ऑन सेइंग गुड थिंग्स। ओह, आई एम इन अबंडेंस ऑफ वेल्थ। हम क्या बोलते हैं? पैसे ही नहीं है यार, पगार आता है चले जाता है, कुछ समझता ही नहीं है, पैसे तो बचते ही नहीं है। अब ये कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे हैं। इट इज सो सिंपल। So what you speak is very important, and remember, मैं बार बार एक चीज 2 बार 3 बार बता रहा हूँ, because it has to register in our mind, और उसको implement करना है। याद रखना, your feelings are important. आपको feel कैसा हो रहा है? Are you feeling happy? Yes, मजा आ रहा है। Just keep on telling yourself, मजा आ रहा है अभी तो यार। I choose happiness, I am happy. These are simple techniques to remain happy. और ये हम जब बोलते जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी कैसा चल रहा है काम का? ठीक है यार, ओके चल रहा है अभी, यू नो। एंड देयर इज अ, हमारे में एक बिलीफ है कि अगर हम किसी और को बताएंगे मैं बहुत हैप्पी हूँ, या माय बिजनेस इज रॉकिंग, या आई मीन अमेजिंग, तो नजर लग जाती है। एंड वी डोंट स्पीक दैट, एंड वी फॉलो द पीपल। प्लीज रिमेंबर, दीज आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल जो अपने आप को कभी हैप्पी महसूस नहीं करते हैं। वो हमेशा दिखाएंगे आपको बहुत दुखी हूं मैं, आई एम नॉट हैप्पी, मेरे तो बच्चे नहीं सुनते हैं यार, तेरा तो सब कुछ बढ़िया है, कितना बढ़िया घर है, तेरा तो धंधा भी अच्छा चल रहा है, मेरा देख, मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। सो देयर आर पीपल हु जस्ट वांट टू शो कि दे आर अनहैप्पी। और दिन में ऐसे 2-5 लोग मिल जाते हैं ना, तो हम भी वैसे बन जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं, अरे हाँ यार मेरा भी ऐसा ऐसा हुआ था, बीमारी हुई थी, 15 दिन रुका था घर में, ये हुआ। एंड वी स्टार्ट शेयरिंग अवर नेगेटिव थिंग्स। प्लीज स्टॉप डूइंग इट। आप बंद करें ये सब चीजें। डोंट शेयर योर नेगेटिव, या यू नो जिस मूवमेंट में आपको मजे नहीं आ रहे थे वो शेयरिंग मत करें। अरे बोल दे भाई, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का नहीं हो रहा है, आपको आदत पड़ जाती है टू फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। अरे भाई बता यार, क्या हुआ तेरे साथ यार, कैसा दुखी क्यों दिख रहा है यार? भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। डू नॉट प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ विक्टिम। Okay, so we have to complete in very short time. So okay, allow me to read. So I will only read today because थोड़ा we need to complete fast. Okay, so now आज का जो कार्ड है, it is about relationship also. Fortunately coincide हो गया है ये हमारा। So I am connected. Connected का मतलब होता है connection with yourself. I am connected to my body. I am connected to peace. I am connected to harmony. I am connected to the higher infinite intelligence. मेरी connection एक जो भगवान कहते हैं हम, नाउ ये जो सब्जेक्ट है उसमें उसको बोला जाता है यूनिवर्स, और हम कहते हैं भगवान। आपका यूनिवर्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका यूनिवर्स भगवान हो सकता है। ओके, और उस भगवान के पास में अबंडेंस है, याद रखना। उस भगवान के पास में इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। कनेक्शन होता है, और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको मैसेजेस आते हैं। जो आदमी इन यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, Are you there? is connected to the universe, or
यूनिवर्स जो है आपको मैसेजेस देता है बाय योर इंट्यूशंस, बाय योर परसेप्शंस। एक इंसिडेंट होता है, आपने उस इंसिडेंट का परसेप्शन क्या किया, आपने उसको किस नजरिए से देखा। मैंने एक अलग नजरिए से देखा, आपने कोई अलग नजरिए से देखा। तो आपका जो परसेप्शन होता है कोई भी एक इंसिडेंट का, दैट विल गिव यू इंट्यूशंस। इंट्यूशन सबको समझ में आ रहा है? सिक्स्थ सेंस। किसी किसी आदमी को मिलो यार, बोले बहुत अच्छा आदमी लगा है, या कभी कभी मन करता है आज तो ये करना ही है। इंट्यूशंस आते हैं अंदर से। लाइक दिस इज अ वेरी पावरफुल इंट्यूशन आई विल लाइक टू शेयर हियर। अगर लड़की को किसी ने गलत तरीके से टच कर दिया या सही तरीके से टच कर दिया, मतलब विदाउट मिस्टेक्स, उनको इमीडिएटली पता चलता है। बॉयज को नहीं समझता है। जनरली इन जनरल गर्ल्स हैव गॉट अ बेटर सिक्स्थ सेंस। So you have to practice and focus. मेरा मन क्या कह रहा है? So because how will it happen? जब आप when you are connected. Okay. So let me read this out. Affirmation कार्ड पढ़ने का तरीका ये होता है, आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना है और धीरे धीरे बोलना है और फील करना है। ओके और उसके बाद में आपको रिपीट करना है। अब मैं आपको आज 7 अफर्मेशन बताऊंगा, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको दिन में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार भी हो सकता है उसको रिपीट कर देना, क्योंकि रिपीट करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आई कनेक्ट विथ पीपल, आई एम कनेक्टेड टू ऑल। जस्ट फील व्हाट आई एम सेइंग, जो फील द वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, ये तरीका इसी तरीके से काम करेगा। आई एम कनेक्टेड टू ऑल, all are connected to me, we are all connected. I am a master in relation building, I establish trust quickly, मैं किसी का भी भरोसा जीत सकता हूँ। People want to work with me, लोग मेरे साथ काम करने में बहुत उत्साहित है। मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आई एम अ मास्टर इन रिलेशनशिप विथ पीपल, आई कनेक्ट विथ देम, आई कनेक्ट पीपल विथ इंटेग्रिटी, मैं लोगों के साथ में इंटेग्रिटी के साथ कनेक्ट होता हूँ। मैं मास्टर हूँ रिलेशनशिप में। तो आई हैव टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत टाइम है दोस्तों के लिए, लोगों के लिए, मेरे पास बहुत टाइम है। फॉर माई फैमिली आई हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लोग बोलते रहते हैं आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, बट यू कीप ऑन सेइंग आई हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आई एम कनेक्टेड टू माई सोल, मैं मेरी आत्मा से कनेक्टेड हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो अश्विनी मैम के साथ में अभी हम जो कर रहे हैं बुक द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसमें हमको समझ में आया कि हमारी आत्मा क्या होता है। इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बट जस्ट कीप ऑन सेइंग आई एम कनेक्टेड टू माई सोल, मैं मेरी आत्मा से कनेक्टेड हूँ। कैन समबडी कन्वर्ट दिस कनेक्टेड टू हिंदी? हिंदी में क्या बोलेंगे? आई एम कनेक्टेड टू, जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, राइट है, ओके। मैं मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, यस, परफेक्ट 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 है। मैं मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन, माई बॉडी इज अ पावरफुल मैसेंजर, मेरी बॉडी मुझे मैसेजेस देती हैं। याद रखना, आपकी सबकी बॉडी आपको मैसेज देती है। कोई भी बड़ी बीमारी आने से पहले आपको बॉडी बताती रहती है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एग्रीवेट होके बढ़ती जाती है। तो हम क्या कहेंगे? आई एम कनेक्टेड टू माई बॉडी,
I am connected. My body is a powerful messenger. I listen carefully to the signs and guidances I receive. I am connected to the infinite abundance from the universe. I connect with my inner soul. Dhanyavad, Shukriya, Meherbani. Thank you so much. Thank you. And so let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate this wonderful new day, because today is the best day of my life. Yes. So thank you very much. So this is where we end today. And just think about something. I'm connected. I have excellent time management skills. I'm connected with people. My body is a powerful messenger. क्योंकि body से connection होना बहुत जरूरी है आपका. I'm connected to the infinite abundance from the universe. So any one sentence आप पकड़ें, उसको आपकी भाषा में बोलें, and keep on repeating yourself. I am connected. I am peace. I am blessed. I am a child of God. Today is the best day of my life. I am the winner. जो पसंद आवे, keep on telling yourself. So if there is any question, we can take some, or else we. Sir, we'll close the session, and it's Okay. already 6 o'clock, more than 6 o'clock. Perfect. And if any questions, we'll Perfect. probably Thank you. take See you all tomorrow. Yes. Thank you Perfect. so Thank much, you. everyone, for joining. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Keep on you so celebrating. much. So you have to leave yourself. Thank you, sir. Please leave yourself. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rajan sir. Thank you, sir. Thank you, Gurpreet ma'am. Thank you, everyone. Thank you.